morning, all students. Today's is a turn of English language. I explain you discursive passages. It means comprehensive passage. First of all, read the passage with carefully, and after then you can find out answer of the given questions. These questions are given optional questions. There are 4 options in each questions. You should find out right answer of them. Okay. Now start reading. Please pay attention to each words and each passages. After them, I send it pick also. Okay. The Guru lights the fire of knowledge. गुरु ज्ञान के का प्रकाश होते हैं। गुरु ज्ञान को प्रकाशित करते हैं, अर्थात गुरु ज्ञान के प्रणेता होते हैं। इसके बारे में ये पैसेज दिया गया है। नाउ द सर्च फॉर ए जीनियस preceptors is triggered in most of us in the moment of inner dissatisfaction with the material expectations one has stacked up in one's life, in the need to find inner peace beyond the material flux of life. Conversely, tradition has it that the Guru seek out those who genuinely desire to understand this matrix of bondage and liberation. Only a highly involved teacher can guide and inspire the disciple of knowledge of the self beyond the qualities of the imperial world. Most seek out of a guru as an external aid to help resolve the daily issues of life as a means of escape. Without attempting to understand their own problems, many gurus today have therefore set up institutions and new creeds reinforcing the images of Guru as a means of escape. But a real Guru seeking out a real speaker of truth, characteristics and ahimsa, samistha, that records the ancient dialogue between the young sages Ashtavakra and King Janak. अष्टावक्र नाम ये राजा जनक के दरबार में एक बहुत ही स्कॉलर पर्सन थे जिनका नाम अष्टावक्र था। ये अष्टावक्र के बारे में कहानी बताई जा रही है। चूंकि वो इतने टेढ़े मेढ़े थे, 8 जगह से टूटे हुए दिख रहे थे, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र, वक्र माने होता है टेढ़ा और अष्ट माने होता है 8 जगह से, इसलिए नाम उनका अष्टावक्र रखा गया था। तो राजा जनक के बारे में यहाँ बताया गया। और रोसिंग कॉल टू एक्ट Manu, who the self-realizations lies at the center of this dialogue, in which the Guru appears as a physically informed figure, as if it to challenge the notion that the physical frame in the be all of life, and to inspire his discipline to look beyond the mortal frame of the 5 senses. Non-attachment for sense object is liberations, love for sense object is bondage. Ashtavakra describes the nature of knowledge, thus going directly into the central focus of his teaching, that the self alone exists and all else within the mind sense matrix is false and unreal. He draws his disciple attention to his own restlessness despite being a satisfied king. The seeker remains unfulfilled because of material preoccupation. Ashtavakra deconstructs the illusory nature of the world further by exhorting Janak to renounce desire in all forms of deities, desire for enjoyment and learning, or even of pious deeds
for bondage consists only of desire, and the destructions of desire is liberation. He asked his disciple to wake up to transitory nature of all things to cultivate depressions. Compassion and dispassions are two characteristics of our spiritually evolved state of mind. Our person of free and fearless soul as one who has renounced desire. For this renunciations of desire alone is renunciation of the word in the from a sense of reality of the word, that the mind functions of creating a cobweb of emotions which bind and attach us to this notion of I mean myself, and cuts us off from seeing everyone else as a part of myself. Now start questions and optional questions and options. You can find out real answer of it. First question is मैं write कर रहा हूँ. Question number 1 लिखा हुआ है, who can help the disciple DISC IPLE to explore oneself, self SELF. ये क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन दिए गए हैं. पहला ऑप्शन है हाईली इवॉल्व्ड टीचर, हाईली इवॉल्व्ड टीचर. सेकेंड ऑप्शन है इसका पेरेंट्स. थर्ड ऑप्शन है इसका रिलेटिव्स. और लास्ट ऑप्शन इसका है नेबर. नेबर से पड़ोसी, NEIGHBOURS. सेकेंड क्वेश्चन है एट व्हाट मोमेंट does the search for GENUI and new prospector PROCEPPOR is triggered in most of us. इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है when one is fully satisfied, when one is fully satisfied, SATISFIED. सेकेंड ऑप्शन इसमें दिया है when one has inner, when one has inner dissatisfaction, DIS can say TIS FACTI, dissatisfaction with the material material. Next third option है when one is completely anxious, ANXIOUS. Last option, none of
क्वेश्चन नंबर थर्ड, why do most people seek out a guru? अधिकांश लोग गुरु को कैसे क्यों तलाशते हैं, क्या कारण है, क्यों खोजते हैं? अधिकांश लोग गुरु को क्यों खोजते हैं? इसमें पहला ऑप्शन लिखा है only to resolve one's materialistic issues यानी भौतिक मुद्दों में केवल अपनी संतुलना चाहने के लिए materialistic issues लिखा है। materialistic बना हुआ है IALISTIC materialistic issues ISSUES। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है only to resolve one's religious issues। रिलीजियस यानी धार्मिक मुद्दों पर। तीसरा इसमें दिया गया है थर्ड ऑप्शन है एज एन एक्सटर्नल एड टू हेल्प रिजॉल्व द डेली यूज ऑफ इश्यूज ऑफ लाइफ, यानी दैनिक मुद्दों पर, जीवन के दैनिक मुद्दों पर। समझ गए? ओनली टू हेल्प रिसॉल्व the daily issues of life, यानी जीवन के दैनिक मुद्दों पर। लास्ट है only to resolve one's personal issues, यानी व्यक्तिगत, only to personal issues, यानी अपने व्यक्तिगत मुद्दों। ये चार ऑप्शंस के दिए हैं, इनमें से कोई एक सही है, ये आपको फाइंड आउट करना है और पेयर वर्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में दिया गया है द अष्टवक्र संहिता, अष्टवक्र संहिता, SAMHITA, अष्टवक्र संहिता records the ancient ancient dialogue, यानी प्राचीन संवाद को। अष्टवक्र संहिता में प्राचीन संवाद को रिकॉर्ड किया गया है। किसके बीच में? ये बताना है राजा जनक के बीच में या अष्टावक्र के बीच में या राजा द्रोणाचार्य के बीच में, या इसको पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। एंशिएंट डायलॉग बिटवीन यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, पहला है अर्जुन एंड द्रोणाचार्य, अर्जुन और द्रोणाचार्य के बीच। नेक्स्ट ऑप्शन है अष्टवक्र जनक, अष्टवक्र एंड किंग जनक, और इसमें थर्ड ऑप्शन इसका दिया गया है भीष्म एंड दुर्योधन,
सुयोधन, कृष्ण एंड अर्जुन। बहुत ही सिंपल है, आप इसको पढ़ते ही समझ जाएंगे और इसके आंसर फाइंड आउट करेंगे। आई होप सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट ए वर्ड, फाइंड आउट आ वर्ड। एक शब्द को छांटना है, ढूंढना है फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से गिविंग सेम मीनिंग, गिविंग सेम मीनिंग, यानी एक तरह से समझ सकते हैं इसका सिनोनिम्स लिखना है। और ये वर्ड कौन सा है? ये वर्ड मैं लिख दे रहा हूं, डी ई बी ई, ड्यूरेशन, डी ई बी ए एस पी ए टी आई ओ एन। ये वर्ड है, इसकी वर्ड मीनिंग यहाँ पर लिखनी है, समझनी है। मैं इसके वर्ड दे रहा हूँ, आपको फाइंड आउट करना है। पहला वर्ड है कंस्ट्रक्शन, निर्माण किसे बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन। और दूसरा वर्ड है आर ई ए एल आई एस ए टी आई ओ एन। और चौथा है any relation, any relation। और लास्ट वर्ड है डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश, डी ई एस टी आर यू सी टी आई ओ एन, डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, non attachment functions, non attachment functions object, sense object is पहला ऑप्शन है इंस्पायरेशन, आई एन एस पी आई इंस्पायरेशन। सेकंड है डिजायर, डी ई एस आई आर ई। थर्ड ऑप्शन है इसका लिबरेशन, एल आई बी ई आर ए टी आई ओ एन। और लास्ट ऑप्शन इसका जा रहा है स्क्रिएशन, यानी स्पेशल तो स्क्रियलिज्म। स्क्रियलिज्म का मतलब होता है अध्यात्मिक, एस पी आई आर आई की। इसके माने आपका होता है, इसी से बना है यू ए एल आई एस एम, स्क्रियलिज्म। इसका मतलब होता है अध्यात्मिक। समझ गए? इसमें से कोई एक अक्षर आपको लेना है जो आपको इसमें सुटेबल लग रहा हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु हैज, क्वेश्चन नंबर 7 है, हु हैज फ्री एंड फियरलेस, फ्री एंड फियरलेस सॉल, एस ओ यू एल। यानी कौन है? भी कौन है? मुक्त आत्मा है। अकॉर्डिंग टू अष्टावक्र, अष्टावक्र के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अष्टावक्र, अष्टावक्र नाम लिखा हुआ है, अष्टावक्र, ये अष्टावक्र है। अकॉर्डिंग टू अष्टावक्र
तो बच्चों आगे इसमें पहला ऑप्शन यहाँ पर हम दे रहे हैं one who craves for something इसका नेक्स्ट ऑप्शन है one who has attained one's goal GOL इसका मीन समझ रहे होंगे one who craves for something one who has attained one goal next है one who has renounced one's desire one who has renounced renounced one's desire DESIRE यहाँ पे लिखा है desire लास्ट है none are these इनमें से कोई नहीं क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है what does अष्टावक्र ask to his discipline DISCIPLE नहीं अष्टावक्र ने अपने शिष्य से क्या पूछते हैं तो पहला ऑप्शन उन्होंने क्या पूछा था टू डू हार्म टू अदर्स दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए टू डू हार्म टू अदर्स दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए कहते हैं या टू वेक अप टू the mystery nature of all things to cultivate this passion to wake up to transitory transitory nature of all things nature of all things इसका ऑप्शन थर्ड है थर्ड ऑप्शन पे पहुंचे टू SAPIAP desire last है none of these लास्ट none of these इनमें से कोई नहीं PHENC क्वेश्चन नंबर 9 the bondage consists only of only of इसमें लिखेंगे डिजायर पहला ऑप्शन है DESIRE सेकंड ऑप्शन है एक्शन और थर्ड ऑप्शन इसका जा रहा है थर्ड ऑप्शन इधर लिखा है थर्ड ऑप्शन इसका दिया जा रहा है डिस्ट्रक्शन ऑल ऑफ दीस डिस्ट्रक्शन और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीस इनमें से सभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर में आ जाइए द चीफ एट्रिब्यूट ऑफ
एट्रीब्यूट का मुख्य गुण आप क्या लिखा हुआ है, स्पिरिचुअली यानी आध्यात्मिकता का, स्पिरिचुअली यानी आध्यात्मिकता का मुख्य गुण क्या है, इवॉल्व state of mind, state of mind and enlightened soul are as usual. पहला ऑप्शन है occasion, फर्स्ट ऑप्शन COMPASSION, दूसरा है dispersion, सेकेंड ऑप्शन है dispersion, थर्ड ऑप्शन है both फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड में है यानी फोर्थ ऑप्शन से कह रहा है डिजिटल एनालिसिस। ये क्वेश्चन है आपके 10। अभी और भी क्वेश्चन है कि मैं लिखा रहा हूं, दो क्वेश्चन और रह गए हैं। नेक्स्ट है द सीकर इमेज, the seeker remains unfulfilled, इसमें नहीं रहेगा, unfulfilled because of the इसका पहला ऑप्शन है material, material, material through occasion, occasion, CUPATION। इसके बाद इसमें लिखा है नेक्स्ट ऑप्शन है स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्मिकता। इसके बाद ऑप्शन नेचुरलिज्म यानी प्राकृतिकता, NATURALISM। none of these, लास्ट ऑप्शन है इसका none of these, इनमें से कोई नहीं। लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है, इसको भी मैं लिख के दे रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट मैसेज हैज बीन conveyed for the passage, इस पैसेज में कौन सा संदेश कन्वे किया जा रहा है? पहला मैसेज है आपका सर्च ऑफ नॉलेज, ज्ञान की खोज, ये पहला मैसेज है, ये आपको देखना है। या सेकंड है, सेकंड में दिया गया है गुरु enlightens the power of knowledge, the importance of realization, the importance of self, लास्ट
in light, lightness, the fire of knowledge, or last word is not important. It is known to all. Guru is not important. ये बच्चों आपको कंप्लीट करना है। मैं इसमें पिक इसकी भेज दूंगा, आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद पेयर वर्क में आप ये वर्क सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।